Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of top selected question from live processes. This is all about the concept basis question, that is MCQs only. As you all know, the lesson live process is the first part of our biology portion, and the probability of this lesson may ask as like the heredity. So it is very important. No one any concept from this lesson is eliminated, so every part and every portion of this lesson is important to you, and it may consist different varieties of questions, because as like the heredity and evolution, as you all know, the portion of evolution is no more in our syllabus. That may have the problems for you to identify whatever the important question from the heredity only, and how can we eliminate the problems or the questions of evolution. To overcome that problems, I have provide you different video, almost dozens of video available in the channels of that portion, the heredity and evolution portion, as the MCQ, long short, fill in the blanks, match the following types, in order to recognize only the portion of heredity. But live process is all about important to you. No any portion of this lesson is eliminated, and that is very important. The question may be diagrammatically explanation. The question from this lesson may be the diagrammatic explanation from the respiration, from the digestion, or from the excretion. Every portion of this live process is important. If the control and coordination portion is remain in the syllabus, then there is little importance of this lesson. But as you all know, control and coordination is no more in our syllabus, so you should focus on the live processes chapter. The live processes chapter, as well as the heredity, natural resource, reproduction, every portion is important. In previous video lecture, you have learned the revision of question number 1 to 9. Question number 1 to 9. In this video lecture, I will revise you the question number 10 onward. This is all about MCQs, but the concept basis, as you all know, may ask in the as the 1 marks, 2 marks, or 5 marks question. The concept should be cleared. In order to clear the concept, here the series of long and short answer type question will also be available in the channel soon, but you should focus on the concept basis question from the live processes. This is part 2 video. Before part 1 and part 2, no any video regarding the live processes I have uploaded over the channels, and there is no video available for you except 1 and 2. Still, this is part 2 video, and before it there was a part 1 video. So you should focus on the video and the question that you got in form of PDF over the WhatsApp link. So don't worry, if you are with me and you are with the video, or you are with the channels of LPM, then there will be no matter. Your all problems will be resolved through me and through my desk. So without delay timing, let back over question number 10 and revise them thoroughly. Now back to question number 10. The last question of previous video was the concentration of the contraction and expansion movements of wall of food pipe is called as peristaltic movements. This should be noted down by you. And the next video lecture, the next question is question number 10. When a few drops of iodine solution are added to rice, the solution turn blue-black in color. This indicates the rice water contain fat, complex protein, starch, and simple proteins. Actually, every starch can be tested by the iodine, and in the presence of iodine, iodine is actually the pale yellow color. It is the light yellow color or pale yellow color chemicals, and that iodine actually, it is the iodine. That iodine actually, if the turn over the starch, then the starch itself turn into blue-black color. It gives the blue-black color. This indicates the presence of starch in any food items. अगर राइस पे एक ड्रॉप आयोडीन गिराएंगे तो वो ब्लू ब्लैक देगा, पोटैटो पे ब्लू ब्लैक, आटे के ऊपर ब्लू ब्लैक, क्योंकि एवरी पार्टिकल्स वेदर द स्टार्च एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट, then it may possible to check the presence of starch or not by means of iodine. So iodine test is mostly for the starch test. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट. The exit
ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड आइटम इज रेगुलेटेड बाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो अनएब्जॉर्ब फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, ठीक है, तो वो एनल स्फिंक्टर से रेगुलेट होते हैं. इट कैन नॉट बी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लीवर, एनस और द स्मॉल इंटेस्टाइन. द एनल स्फिंक्टर रेगुलेट द अनएब्जॉर्ब फूड आइटम्स and it is not immediately released out from the body. The anal sphincter actually prevent the moves food items outside from the body, and that's why it is important to keep the unabsorbed food items for some times in our body. Now question number 12, what are the product obtained by anaerobic respiration in plants? लैक्टिक एसिड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड पायरुवेट. लिसन, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द that is highly developed organisms. The organisms, the lower organisms perform the process of anaerobic respiration in which they often release the lactic acid and energy. But the higher organisms perform the process of aerobic respiration by means of perform the anaerobic respiration by means of ethanol formation, carbon dioxide formation and energy formation. Actually pyruvic acid is the process of glycolysis formation, that is the pre-respiration process, whether it is common in both respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. तो इसके बारे में समझना है कि पायरुविक एसिड कब बनता है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी कब बनता है, ये सब अच्छे से आपको समझ लेना है, तभी आपको ये क्लियर होगा. लिसन, होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, ये चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन में हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो, ये पार्टिसिपेट करने से पहले अपने आप को साइटोप्लाज्म में ही किसमें कन्वर्ट कर देता है, पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, CH3COOH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड. दिस इज द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल. एंड नाउ in presence of oxygen this pyruvic acid convert into carbon dioxide, water and energy. 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water and 38 ATP energy, that is in presence of oxygen. This is called as aerobic respiration. This is called as aerobic respiration. But during anaerobic respiration, this pyruvic acid either convert into 2 molecule of ethanol C2H5OH in the plants or in the yeast and 2 molecule of carbon dioxide plus 2 ATP energy in the aerobic respiration. Listen carefully, in the aerobic respiration 38 ATP energy form, but here during the anaerobic respiration in each condition along with the ethanol or along with the lactic acid only 2 ATP energy form. So in case of yeast and plants the pyruvic acid convert into ethanol and carbon dioxide, and in case of bacteria and muscles of the body during the vigorous physical activity the muscles of the body and the bacteria in absence of air form the lactic acid, that is 2 molecule of lactic acid and 2 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of ATP. So 2 molecule of lactic acid and no carbon dioxide, only 2 molecule of ATP. So along with 2 molecule of lactic acid only 2 ATP form in bacteria, and that is the process of anaerobic respiration in the second way. In the first way you have learned, in the first way the ethanol form, in the second way the lactic acid form. This happened in plants and this happened in muscles of human being, muscles of vertebrates and the bacteria that perform the process of anaerobic respiration. लैक्टिक एसिड का फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं CH3H
ऊपर भी लगा लीजिए H और यहाँ पे लगाइए COOH। ये 2 मॉलिक्यूल, तो कितना मॉलिक्यूल बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स। लैक्टिक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल ATP, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और ATP में कन्वर्ट होता है। हायर मॉलिक्यूल्स हायर प्लांट्स में, और हायर प्लांट्स एक्चुअली प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में तो नहीं, सब प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अगर कोई प्लांट्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करे तो इसमें ये होता है, ठीक है। जनरली ये ईस्ट में होता है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। सो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं 13 पे। 13 क्या बोल रहा है? 13 बोल रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। कह रहा है कि कार्बन, जो पायरुविक एसिड है इसी को पायरुवेट भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट भी बोलते हैं, ठीक है। गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, ये सब किस में होता है? ये सब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। देखो मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स, एक बात और समझ लो, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में, ठीक है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह पे होते हैं। ये पायरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना काम किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन ये सब होता है साइटोप्लाज्म में। ये सब किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। और ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कि 13 का क्या हो जाएगा? ये 13 का बी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल्स। तो ऊपर बताया था साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन और फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का नोट कर लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, इस पे हमको फोकस होके चलना है। 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है? नेम द सबस्टेंसेस whose buildup in muscle during vigorous physical activities causes make cramps। तो विगरस एक्टिविटीज़ के थ्रू लैक्टिक एसिड बनता है, ऊपर मैंने बताया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मस्कुलर क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब विगरस एक्टिविटी करते हैं तो ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड पर प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला सब लोग लिख लेंगे, ये आसान होगा। COOH ये लैक्टिक एसिड है, दिख रहा होगा। ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है विगरस फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्या? 16। नेम द पोर्स ऑफ लीप थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टोमेटा, लेंटिसेल, वैक्यूल, जाइलम, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेंटिसेल क्या है? भाई लेंस शेप स्ट्रक्चर। जब कॉर्क सेल्स जो है ऐसे क्रैक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कॉर्क सेल जब क्रैक हो जाएगा तो लेंस शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं लेंटिसेल, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा 16 का। कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज बेसिकली कहाँ होता है? स्टोमेटा में, ठीक है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोमेटा का एग्जाम स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे, बहुत आसान भी है, बहुत कठिन नहीं है। ये मैं अपने लेवल पे बना रहा हूँ, देखो इस तरह से स्टोमेटा आ जाएगा एग्जाम में, तो बना लेंगे। लेबलिंग देखो, सारे एग्जाम की लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी और आर्ट में यही डिफरेंट होता है। ये जो होल दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टोमा, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमा। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पैलिसेड, पैलिसेड।
और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बीज सीड शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग इज। अब कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का नाम बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, पिगमेंट तो क्लोरोफिल भी है लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं, ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बीइंग में क्या है? ये 17 का सी हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का बेसिक काम क्या है? ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को भी कैरी करके ले जाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करके ले जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को भी यही कैरी करके ले जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है, जिसको Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऑक्सीजन को भी कैरी करके ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये हमारे कैपिलरीज में होता है, ब्लड कैपिलरीज में। जब ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होकर के ब्लड में मिक्सअप होता है तो ब्लड का हीमोग्लोबिन पिगमेंट इसको ट्रैप करता है ऑक्सीजन को, और जो सेल्स होते हैं सेल के अंदर ले जाता है, और सेल से फिर ऑक्सीजन को ट्रैप करते कहाँ लेके आता है? एल्वियोली में लेके आता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसको आपको दिमाग में रखना है, पॉइंट आउट कर लेना है एक एक चीज़ें। देखो, ये कैरोटीन ये पिगमेंट्स है बट ये पार्टिसिपेट नहीं करता है रेस्पिरेशन में। क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन ह्यूमन बीइंग है। किसी किसी साल क्या पूछ देता है? व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन, तो लिखेंगे बोथ आर पिगमेंट्स। ठीक है, बोथ आर पिगमेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ। कह रहा है कि कौन सा प्लांट टिश्यू जो है वाटर को और मिनरल्स को रूट और शूट्स में ले जाता है, लीव्स तक ले जाता है। तो ये क्या है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, तो रूट के वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लांट टिश्यू है जाइलम। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को कैरी करता है, लेकिन जाइलम क्या करता है? ये जाइलम रूट साइड से वाटर को, ठीक है, रूट साइड से वाटर को कैरी अप करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ले आता है, यानी कि ये जाइलम के थ्रू ही मूव करते हैं। कौन? मिनरल्स एंड वाटर जाइलम के थ्रू मूव करते हुए कहा जाते हैं रूट टू शूट। शूट्स में क्या क्या आते हैं? लीव्स आता है, स्टेम आता है, ब्रांचेस। फिर से उन ब्रांच से, लीव से, और जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज और स्टार्च को कैरी करके ले आता है। कौन? फ्लोएम ले आता है। ये इंपॉर्टेंट है, जाइलम रूट से और फ्लोएम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स यानी लीव से लेकर के प्लांट फूड आइटम्स को ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है, और ये सिर्फ रूट से शूट में ले जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, और इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 to 18 को सॉल्व किया। 10 to 18 को सॉल्व किया। लास्ट वीडियो इसी लेसन से था, टिपिकल क्वेश्चंस को ही हमने कलेक्ट किया था, उसमें 1 to 9 को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आई होप एक एक वीडियो लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट है और आप इसको देख रहे होंगे, अंतिम तक देखेंगे, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये लेसन भी हमारा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, और आप खुद जो है कॉपी को प्रिपेयर करेंगे और कॉपी में सारा आंसर लिख डालेंगे। कोई अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द लाइव क्लासेस, इवन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब। थैंक यू।